السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ میں ہوں اعجاز زرگر۔ آج ہم بات کریں گے جنوب مشرقی ایشیا میں واقع چھوٹے مگر خوبصورت ملک سنگاپور کے بارے میں، جس کا پورا نام ریپبلک آف سنگاپور ہے۔ اس کی سمندری سرحدیں ملائیشیا اور انڈونیشیا کے ساتھ ملتی ہیں۔ یونانی ماہر فلکیات بطلیموس نے 2 صدی عیسوی میں مالے جزیرے کے پاس ایک نیا جزیرہ دریافت کیا جسے سبانا کا نام دیا گیا۔ سنگاپور کی تاریخ کے ابتدائی نمونے 3 صدی میں چینی دستاویزات سے ملتے ہیں۔ اس میں اس جزیرے کو پولاچنگ کہا گیا ہے۔ سنگاپور کا نام سمالٹا کے ایک شہزادے نے رکھا تھا جو یہاں کسی کام کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے یہاں پہ ایک شیر کو دیکھا۔ شیر کو مالے زبان میں سنگا کہا جاتا ہے۔ شہزادے نے اس کو سنگاپور کا نام دیا جسے آج بھی دنیا اس کے نام سے جانتی ہے۔ 14ویں صدی کے حقائق اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس صدی میں سنگاپور میں تجارتی بستیاں آباد تھی۔ اس وقت سنگاپور پرمیشور کے زیر نگیں تھا، پھر ماجاپاہی، اس کے بعد سلطنت ملاکا اور پھر سلطنت جوہوز نے وہاں حکومت کی، جو بندرگاہ سر تھامس اسٹیم نے ایک معاہدے میں برطانیہ کو دلوائی تھی۔ 1819 عیسوی میں اس بندرگاہ پر ایک برطانوی کالونی بنی۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی فوجوں نے سنگاپور پر چڑھائی کر کے وہاں قبضہ کر لیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سنگاپور برطانیہ کے قبضے میں آ گیا۔ 1963 عیسوی میں وفاق ملایا سے ملا کر ملائیشیا کو تشکیل دیا گیا، مگر اقتدار کی لالچ اور سیاسی تگ و دو کی وجہ سے سنگاپور الگ ہو کر ایک آزاد ملک بن گیا۔ اس وقت مالے قوم کو ہی ملائیشیا میں حقوق حاصل تھے، جن میں تعلیم، صحت، نوکریاں شامل تھیں۔ باقی قوموں کو کوئی بھی حقوق حاصل نہ تھے۔ سنگاپور کا وزیر اعظم اپنی آزادی کا اعلان کرتے ہوئے اشکبار ہو گیا۔ یہ دنیا میں پہلی بار ہوا کہ اپنی آزادی پر کوئی خوش نہیں تھا، کیونکہ وہ ملائیشیا سے علیحدگی نہیں چاہتے تھے۔ آزادی کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ شروعات میں کافی مسائل تھے، مگر ان لوگوں نے اپنی محنت سے ترقی کی۔ ان مسائل میں سر فہرست تھا آبادی کا کم ہونا، جس کی وجہ سے امیگریشن قوانین میں نرمی کی گئی اور باہر سے لوگ یہاں آ کر بسنے لگے۔ سنگاپور کی کل آبادی تقریباً 54,53,200 افراد پر مشتمل ہے، جس میں 63% اصل سنگاپور کے شہری ہیں اور 37% باہر کے ملکوں سے آ کر یہاں بسنے والے لوگ ہیں۔ باہر سے آئے ہوئے لوگوں میں 74% یعنی اکثریت چینی باشندوں کی ہے، 13.4% مالائی ہیں، 9.2% ہندوستانی اور تقریباً 3% باقی مخلوط قومیں ہیں۔ سنگاپور میں بدھ مت مذہب ماننے والے لوگوں کی اکثریت ہے، جو کل آبادی کا 31% ہے۔ تقریباً 15% مسلمان، 8.5% تاؤست، 5% کیتھولک، 5% ہندو، 18.9% عیسائی، 0.6% سکھ اور تقریباً 20% لوگ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے۔ یہاں مختلف لسانی اور نسلی گروہوں اور مختلف مذاہب ہونے کے باوجود تعصب نہ ہونے کے برابر ہے۔ مذہبی اور لسانی ہم آہنگی نے ماحول کو پرسکون بنا رکھا ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو خود میں ہی ملک بھی ہے اور اپنا دارالحکومت بھی۔ سنگاپور اپنی صاف شفاف سڑکوں، گلیوں کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یوں تو آج کے دور میں ہمارے ملک میں بھی صفائی ستھرائی کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، مگر ہم خود اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وہاں صفائی اور ماحول کو غیر آلودہ رکھنے کے لیے بہترین اقدامات اور قوانین واضح ہیں۔ 60,000 سے زیادہ ملازمین صرف سڑکوں اور گلیوں کی صفائی ستھرائی کے لیے بھرتی کیے گئے ہیں۔ سنگاپور کا ہر شہری قانون پر اچھی طرح عمل درآمد کرتا ہے۔ گلیوں میں کچھ گرانا، تھوکنا، پیشاب کرنا یا توڑ پھوڑ کرنا ناقابل جرمانہ جرائم میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ 1992 عیسوی سے یہاں پر چوئنگم کھانے پر مکمل پابندی ہے۔ آج بھی یہ پابندی برقرار ہے۔ سوائے ڈاکٹروں کی ہدایت کے کوئی بھی فارمیسی ڈینٹل گم نہیں بیچ سکتی۔ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دی جاتی ہے، جسے کریٹو ورک کہا جاتا ہے، جس میں مجرموں کو ایک چمکدار بنیان پہنا کر عوام میں کوڑا اٹھوایا جاتا ہے۔ سنگاپور کے اس قانون سے شاید کم ہی لوگ واقف ہوں گے، جس میں یہاں ابارشن کروانے پر بھی سخت پابندی ہے، اور یہ پابندی کئی دہائیوں سے عائد ہے۔ سنگاپور قوانین کے حوالے سے کافی سخت پالیسی رکھتا ہے۔ یہاں پر سیاح اکثر احتجاج کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ سیاحوں کو کچھ مخصوص علاقوں کے علاوہ کہیں پر سگریٹ نوشی کی اجازت نہیں ہے۔
यहाँ का अदालती निज़ाम भी काफ़ी मुनसफाना है। चोरी, तखरीब कारी, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे जराइम पे जेल और सज़ाए मौत तक की सज़ाएं दी जाती हैं। यहाँ भी पहले ट्रैफिक के काफ़ी मसाइल थे। हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग़ देकर इस पर काबू पा लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि सड़कों पर गाड़ियाँ कम निकलती हैं और धुएं की कमी से माहौलियाती आलूदगी भी नहीं होती। सिंगापुर में जराइम की शरह 1% से भी कम है। सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके बासियों को जनूबी कोरिया, चीन और अमेरिका जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंगापुर का कुल रकबा 716 मुरब्बा किलोमीटर है। यह मुल्क शहर के अलावा 63 छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है। सबसे बड़े जजीरे का नाम योजोंग है। रकबे के लिहाज से सिंगापुर दुनिया में 117वें नंबर पर आता है। सिंगापुर मगरबी तर्ज की पार्लिमानी जमहूरियत का सियासी निज़ाम है। मुमलिकत का सरबराह सदर होता है। एक ही मुंतखब इदारा है जो 5 सालों के लिए मुंतखब किया जाता है और इसके अरकान की तादाद 81 होती है। पार्लिमान अपने में से किसी एक को वज़ीर आज़म चुनती है और ये वज़ीर आज़म अपनी काबीना का चुनाव भी पार्लिमान में करता है। 1991 ईस्वी से इस कानून का निफाज किया गया है। यहाँ के चंद मशहूर लोगों में ली कुआन योको मुल्क के बानी के तौर पर जिन्हें जाना जाता है। उन्होंने 1959 ईस्वी में इंतखाबात में अपनी पार्टी पीपल एक्शन पार्टी को फतह दिलवाई और रियासत के पहले वज़ीर आज़म बने। उन्होंने 1959 से 1990 तक सिंगापुर के वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी। नंबर 2 पर आते हैं एडम खो। ये एक मशहूर कारोबारी, मुसन्निफ़ और माहिर तालीम है। ये 26 साल की उम्र में खुद साख्ता करोड़पति बने। नंबर 3 पर आते हैं जोसेफ प्रिंस। ये नियो क्रिश्चियन चर्च के सबसे बड़े पादरी हैं। ये एशिया के सबसे बड़े गिरजाघरों में से एक है। नंबर 4 पर आते हैं मोनरॉय जैक्सन। ये एक मशहूर अमरीकी गुलकार, मौसीकार और अदाकार हैं जिनकी जाए पैदाश सिंगापुर है। नंबर 5 पर आते हैं लुइस सेलिरियन। ये एक मशहूर सिंगापुर के दस्तावेजी फिल्मसाज, सहाफ़ी, ब्रॉडकास्टर और मुसन्निफ़ हैं। माले या मलाई सिंगापुर की कौमी ज़ुबान है। इसके अलावा अंग्रेज़ी, तामिल, चीनी यहाँ की बोले जाने वाली आम ज़ुबानें हैं। यहाँ हर फर्द कम से कम 2 ज़ुबानें ज़रूर जानता है, एक अपनी मादरी और दूसरी अंग्रेज़ी। सिंगापुर का 23% हिस्सा जंगलात पर मुबनी है। आबादी बढ़ने के साथ साथ इसे काटा भी जाता है, मगर फिर भी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए जगह जगह पार्क बनाए गए हैं जो सिंगापुर की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। यहाँ के जंगली जानवरों में ओसर, मलायाई तापर, बंदर, जंगली सूअर, एशियन हाथी, मकाओ, छोटा हिरन, चीते नस्ल की बिल्ली, पेंगुलन, मकाक, संडानी पेंगुइन, मलायाई कोलगो काबिल ज़िक्र हैं। अगरचे सिंगापुर एक छोटे साइज़ का मुल्क है, मगर इसके मकामी रस्म व रिवाज और सकाफ़तें मुतअद्दिद नस्लों सकाफ़तों का इम्तज़ाज है, जिसमें चीनी, मलाई और हिंदुस्तानी शामिल हैं। बुनियादी तौर पर इस मुल्क की तारीख तजारती मराकज़ के तौर पर है। सकाफ़त का तनु इसकी बोली जाने वाली ज़ुबानों में ज़ाहिर होता है। यहाँ की सकाफ़त में आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और इंसानी इखलाक हमेशा चमकता नज़र आता है। 25 साल कबल रियासत सिंगापुर 320 मिलियन अमरीकी डॉलर से कम की GDP के साथ एक गैर तरक्की शुदा मुल्क था। आज यह दुनिया की तेज़ी से बढ़ती हुई मईशतों में से एक है। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुरी डॉलर है। इसके $1 की कीमत हिंदुस्तानी 61 रुपये के बराबर है। इस वक्त इसकी GDP 397 बिलियन अमरीकी डॉलर है। यहाँ की फ़ीकस आमदनी दुनिया के चोटी के ममालिक में शुमार होती है। ये तकरीबन 56,000 अमरीकी डॉलर फ़ीकस है। यहाँ एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10% अफराद के पास 10,000 अमरीकी डॉलर की मालियत के असासे हैं। इसलिए इसे करोड़पतियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ बेरोज़गारी की शरह सिर्फ 2% है। यह सरजमीन कोई भी कुदरती मादनियात से बरी नहीं है। सिंगापुर की ज़राअत का भी माइशत में कोई काबिल ज़िक्र किरदार नहीं है। इसके बावजूद इस कौम ने अपनी मेहनत और मनसूबाबंदी से अपनी सनत और तजारत को ऐसे इस्तवार किया कि आज सिंगापुर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है। इस वक्त तकरीबन 3,000 गैर मुल्की कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं, जिनमें बहुत सी मायानाज दवासाज कंपनियां भी हैं। यहाँ ड्रिंक्स की खुदकार मशीनें नस्ब की गई हैं। यहाँ बसों की टिकटें प्रिंट करने वाली मशीनें 1996 ईस्वी में ही लगाई गई हैं।
सिंगापुर में पीने के साफ पानी की कमी है, जो इंडोनेशिया और मलेशिया से दरामद करके पूरी की जाती है। यहाँ की सनतों में जहाज़साजी, तेल की सफाई, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, कीमियाई एशिया, कागज़, अद्वियात, कपड़ा साजी, प्लास्टिक, रबड़ की मसनूआत, स्टील पाइप, प्लाईवुड, लकड़ी का सामान, स्याहत, कंप्यूटर पार्ट्स और माहीगीरी शामिल है। दुनिया में तेल साफ करने का तीसरा बड़ा कारखाना भी सिंगापुर में है। पूरी दुनिया में अमीर मुल्कों में सिंगापुर का 6ठा नंबर है, जबकि एशिया के अमीर तरीन मुल्कों में इसका पहला नंबर आता है। सिंगापुर की शरह तालीम 97.2% है। यहाँ का तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा है। तालीम पर इस वक्त खास तवज्जो दी जा रही है। सिंगापुर की कौमी यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का शुमार दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में किया जाता है। पूरी दुनिया में बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में इसका 21वां मकाम है। सिंगापुर का रोड सिस्टम बहुत आला है। आला किस्म की सड़कें बनाई गई हैं और ट्रैफिक को भी अच्छी तरह से मैनेज किया जाता है। सिंगापुर के मशहूर खानों में लक्सा, मिर्च केकड़े, हिनियानी चिकन राइस, साते, फ़िश हेड करी, चारकोए, बारबेक्यू और इसके अलावा हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी खाने भी यहाँ दस्तयाब हैं। सिंगापुर एशिया के पसंदीदा सियाहती मकामात में से एक है। इसकी सियाहत GDP में बड़ा किरदार अदा करती है। हर साल यहाँ पूरी दुनिया से लाखों सियाह आते हैं। शानदार कुदरती मनाजिर और इंसान साख्ता पुरकशिश मकामात से मालामाल ये ख्वाबों की तातीलात के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ के एयरपोर्ट को एशिया का बेहतरीन एयरपोर्ट होने का एजाज़ हासिल है। सिंगापुर को अपनी भरपूर सकाफ़त, तारीख़, रवायात और शानदार पुरकशिश मकामात, थिएटर, दिलकश शॉपिंग मॉल्स, वाइल्ड लाइफ सफारी, हैरत अंगेज़ मनाजिर, इंसान साख्ता जजीरे और बहुत कुछ इसको एक मखसूस जगह बनाता है। इसके अलावा यहाँ के बुलंद व बाला खूबसूरत ट्विन्स टावर काबिल दीद हैं, जो लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।